Hello viewers, I am Taram Kumar Gondwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, there are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For best understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. At the end of the video and each topic and each section, we will be discussing about the related important questions, feasibility and working application. Let's start the video. Hello students, hello everyone. Welcome back to the channel. In this session, we'll continue with the subject material testing and evaluation. And the topic of discussion today would be types of deformation. And we've been discussing about concrete. So we'll continue with the deformation of concrete only. So depending on the type of material, size and geometry of the object and the forces applied, various types of deformation and may result. तो मटेरियल पे भी, साइज पे भी, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करते हैं कि डिफॉर्मेशन किस तरीके की होगी. The image to the right shows the engineering stress versus strain diagram for a typical ductile material such as steel. Different deformation modes may occur under different conditions as can be depicted using a deformation mechanism map. तो एक स्टील स्ट्रेन वर्सेस स्टील डायग्राम से हम समझेंगे स्टील का कि जो डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म है वो किस तरीके से एक्ट करता है, उसका डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म मैप कैसा होता है. Permanent deformation is irreversible. The deformation stays even after removal of the applied force. तो जो permanent deformation है वो reversible नहीं होता और डिफॉर्मेशन रहती है लोड जब हम हटा देते हैं उसके बाद भी. While the temporary deformation is recoverable and it disappears after the removal of the applied forces. Temporary deformation is also called elastic deformation, while the permanent deformation is called plastic deformation. तो टेम्पररी डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है. और जो टेम्पररी डिफॉर्मेशन है वो जैसे ही लोड रिमूव किया जाता है वो रिकवरी उसकी हो जाती है. नाउ फर्स्ट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, द स्टडी ऑफ टेम्पररी and or elastic deformation. In the case of engineering, strain is applied to materials used in mechanical and structural engineering such as concrete and steel, which are subjected to very small deformations. So temporary या फिर elastic deformation जो कि अप्लाई किया जाता है कंक्रीट में, स्टील में, बहुत छोटे डिफॉर्मेशंस के लिए ये स्टडीज की जाती हैं. Engineering strain is modeled by infinitesimal strain energy theory, also called small strain theory, small deformation theory, small displacement theory, or small displacement gradient theory, where strains and rotations are both in very small magnitude. तो ये सब नाम है स्ट्रेन थ्योरी के, जब जो रोटेशन और स्ट्रेन की वैल्यूज बहुत कम होती हैं उस केस में. In some materials, for example, elastomers and polymers, which are subjected to large deformations, the engineering definition of strain is not applicable. Example, typical engineering strains greater than 1%. Thus, more complex definitions of strain are required, such as stress, logarithmic strain, green strain, and Almansi strain. So, कुछ मटेरियल्स में या इलास्टोमर्स में, पॉलीमर्स में जो कि लार्ज डिफॉर्मेशन अंडर वो करते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो टिपिकल स्ट्रेन की तरह डिफाइन नहीं होता है. तो इसकी डेफिनेशन स्ट्रेच, लॉगरिथमिक स्ट्रेन, ग्रीन स्ट्रेन, एलमैंसी स्ट्रेन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. इलास्टोमर्स एंड शेप मेमोरी मेटल्स सच एज निटिनॉल exhibit large elastic deformation ranges, as does rubber. However, elasticity is non-linear in these materials. तो कुछ materials होते हैं इलास्टोमर्स ही होते हैं जो कि जिनके पास शेप मेमोरी होती है, यानी कि वो एक लंबे एक्सटेंट तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन को सरवाइव कर सकते हैं रबर की तरह. पर इलास्टिसिटी नॉन लीनियर होती है, वो
जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, जो लीनियरिटी है वो मेंटेन नहीं रहती इलास्टिसिटी। नॉर्मल मेटल्स, ceramics and most crystals show linear elasticity and a smaller elastic range. So this is the typical stress strain curve for steel, as you can see. जब यहाँ से हम लोड अप्लाई करना शुरू करते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, so this is the induced strain. यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन लीनियर है एंड दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहलाता है। यील्ड स्ट्रेंथ को अचीव करने के बाद थोड़ा सा एक बार नीचे प्रोफाइल आती है, स्ट्रेन कंटिन्यूज टू इंक्रीज व्हाइल स्ट्रेस डिक्रीजेस हियर। फिर से स्ट्रेस दोबारा इंक्रीज होना शुरू होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक, और फिर यहाँ से फाइनली नेकिंग होनी शुरू हो जाती है और स्ट्रेस वैल्यू कम हो जाती है एंड फाइनली स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। एंड यंग्स मॉड्यूलस here is given by this value, this is rise versus this horizontal value which is run. So this is the slope, and this slope gives Young's modulus of elasticity. Linear elastic deformation is governed by Hooke's law, which states where this value here S is the applied stress and E is the material constant called Young's modulus or elastic modulus, and sigma is resulting strain. The relationship only applies in elastic range and indicates that slope of stress versus strain curve can be used to find Young's modulus. Engineers often use this calculation in tensile tests. तो ये जो यंग्स लॉ है, ये जो यंग्स मॉड्यूलस है, हुक्स लॉ जो है वो यहीं तक, जहाँ पे इलास्टिक रीजन है बस वहीं तक वैलिड है। Note that not all elastic materials undergo linear elastic deformation. Some such as concrete, grey cast iron and many polymers respond in a non-linear fashion. For these materials, Hooke's law is inapplicable. तो सब इलास्टिक मटेरियल्स की इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, ये लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे कि कंक्रीट, ग्रे कास्ट आयरन और बहुत सारे पॉलीमर नॉन लीनियर इलास्टिसिटी शो करते हैं, तो इस केस में हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। सो दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एज यू कैन सी। यहाँ से जैसे हमने प्रेस किया, अगर इसको इस फेस से जिसका ऑपोजिट फेस है वो ऐसे रेज्ड हो गया, तो दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये अपने आप इसकी रिकवरी नहीं होगी लोड के रिमूवल के साथ, ये ऐसा एक बार डिफॉर्म हो गया तो ऐसा ही रहेगा। This type of deformation is not undone simply by removing the applied force. An object in the plastic deformation range, however, will first have undergone elastic deformation, which is undone simply by removing the applied force. So the object will return part way to its original shape. Soft thermoplastics have a rather large plastic deformation range, as do ductile metals such as copper, silver, and gold. तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत इजीली अंडर नहीं हो पाती अगर हम लोड अप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो पर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंजेस होती है वो काफी हाई होती है बहुत सारे केसेस में, जैसे कि सॉफ्ट थर्मोप्लास्टिक्स में अगर हम उसको कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से कंपेयर करें तो स्टील डज टू बट नॉट कास्ट आयरन, तो स्टील की भी हाई होती है पर कास्ट आयरन की नहीं। हार्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, रबर, क्रिस्टल्स एंड सेरेमिक्स हैव मिनिमल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंजेस। तो जो हार्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं जैसे रबर, क्रिस्टल्स, सेरेमिक्स, इनकी प्लास्टिसिटी बहुत कम होती है और ये ब्रिटल होते हैं, एकदम टूट जाते हैं। An example of material with large plastic deformation range is wet chewing gum, which can be stretched to dozens of times its original length. तो एक मटेरियल लास्ट जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है वो है एक च्युइंग गम जो कि गीली हो चुकी है, और क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल शेप से कई गुना ज्यादा बड़ी की जा सकती है स्ट्रेच करके।
Under tensile stress, plastic deformation is characterized by a strain hardening region and a necking region, and finally fracture, also called as rupture. तो टेंसाइल स्ट्रेस में जैसा कि अभी हमने ऊपर ग्राफ में देखा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, नेकिंग रीजन और फ्रैक्चर में डिवाइड किया जाता है। ये प्लास्टिक रीजन में कुछ इस तरीके से जैसा कि हमने देखा, ये सारा प्लास्टिक रीजन है यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, जब हमारा मटेरियल और ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है। फिर यहाँ पे नेकिंग शुरू हो जाती है, जब वो स्ट्रेस लेना बंद कर देता है, उसके अंदर खाली स्ट्रेन डेवलप होता है, और फाइनली स्ट्रेन की वैल्यू जब एक्सीड कर जाती है तो वो फ्रैक्चर पॉइंट पे आ जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज रप्चर। During strain hardening, the material becomes stronger through the movement of atomic dislocations. तो जब स्ट्रेन हार्डनिंग तो मटेरियल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एटॉमिक डिसलोकेशंस होती हैं। The necking phase indicated by a reduction in cross-sectional area of the specimen. तो नेकिंग तब पता चलने, तब विजिबल होती है, तब ज्यादा क्लियरली दिखती है जब जो क्रॉस सेक्शन है हमारे स्पेसिमेन का वो कम होने लगता है। नेकिंग बिगिंस आफ्टर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज रीच्ड। तो जैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहुंचती है उसके इमीडिएट बाद नेकिंग शुरू हो जाती है, अगर हम उस पर स्ट्रेस अप्लाइड रखें। ड्यूरिंग नेकिंग द मटेरियल कैन नो लॉन्गर विथस्टैंड द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इन द स्पेसिमेन रैपिडली इंक्रीजेस। तो नेकिंग में जो मटेरियल है वो और ज्यादा, नेकिंग के केस में और ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं ले पाता है, और उस केस में जो स्ट्रेन है वो बहुत तेज बढ़ता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड्स विद फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल। So next is fatigue. Another deformation mechanism is fatigue, which occurs primarily in ductile metals. It was originally thought that a metal deformed only within the elastic range returned completely to its original state once the forces were removed. तो फटीग मैकेनिज्म भी एक दूसरे तरह की डिफॉर्मेशन है जो कि डक्टाइल मेटल्स में ज्यादातर होती है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो मटेरियल्स हैं वो खाली इलास्टिक रेंज में ही डिफॉर्म होते हैं, और उसको अपनी ओरिजिनल स्टेट पे हमेशा भेजा जा सकता है जब फोर्सेस हटाई जाती हैं। However, faults are introduced at molecular level with each deformation. पर मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बहुत सारे डिफॉर्मेशंस हो जाते हैं, भले ही मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट्स में हो तब भी। After many deformations, cracks will begin to appear, followed soon after by a fracture, with no apparent plastic deformation in between. तो क्या होता है कि जब हम बार बार डिफॉर्मेशंस देते हैं, हमारा जो भी मटेरियल है वो जब अपनी सर्विस स्टेट में होता है तो वो बार बार डिफॉर्मेशन अंडरगो करता है, उसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जब क्रैक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फाइनली फ्रैक्चर स्टेज आ जाती है। और ये जो फ्रैक्चर स्टेज है ये बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के आती है। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल shape and how close to the elastic limit it is deformed, failure may require thousands, millions, billions और trillions of deformations. तो ये डिपेंड करता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये जो हम उसको रिपीटेड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको डिफॉर्मेशन बार बार दे रहे हैं उसकी सर्विस लाइफ के दौरान, तो वो मटेरियल की शेप, मटेरियल का टाइप, इलास्टिक लिमिट कैसी है मटेरियल की, हम उसको कितनी बार डिफॉर्म कर रहे हैं, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियन बार, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका फेलियर रीच होगा और कब होगा। मेटल फटीग has been a major cause of aircraft failure, especially before the process was well understood. For example, Dr. de Havilland comet accidents. There are two ways to determine when a part is in danger of metal fatigue. तो मेटल फटीग जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये काफी एक मेजर कॉज है एयरक्राफ्ट फेलियर का, जिससे जब तक हमने एक प्रोसेस नहीं समझा था जिसको हम डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं, प्लास्टिक और इलास्टिसिटी में हमने जो डिफरेंस बोला था, हमें हमेशा ऐसा लगता था कि जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा
मटेरियल को अपनी ओरिजिनल शेप, स्ट्रेंथ सब कुछ रीगेन करा देती है जैसे ही हम लोड को रिमूव करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते थे कि फटीग जो होता है वो भी एग्जिस्ट करता है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे मटेरियल में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। सो देयर आर टू वेज टू डिटरमिन व्हेन अ पार्ट इज इन डेंजर ऑफ मेटल फटीग। तो मेटल फटीग पता लगाने का कि हमारा मेटल डेंजर में है कि नहीं, उसको पता लगाने के दो तरीके हैं। Either predict when failure will occur due to material, force, shape, iteration, combination, and replace the vulnerable materials before this occurs, or perform inspections to detect the microscopic cracks and perform replacement once they occur. तो दो तरीके हैं, या तो हम एंटिसिपेट करें कि मटेरियल, उस पर एक्टिंग फोर्स, शेप, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स कैसे हैं, और जो भी वल्नरेबल मटेरियल्स हैं उसको हम रिप्लेस कर दें। या फिर दूसरा तरीका है कि इंस्पेक्शन परफॉर्म किए जाएं, जो कि माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स को पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लें, और जो भी रिप्लेसमेंट नेसेसरी रिक्वायर्ड है उसको हम रिप्लेस कर दें। Selection of materials not likely to suffer from metal fatigue during the life of the product is the best solution, but not always possible. तो ऐसा मटेरियल लिया जाना चाहिए जिसका मेटल फटीग वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो, पर हर बार ऐसा मेटल मिल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। Avoiding shapes with shape corners limit metal fatigue by reducing stress concentrations but does not eliminate it. तो अगर हम ऐसी शेप लेते हैं जिसमें कॉर्नर्स लिमिटेड हो, यानी कि राउंडेड शेप हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो मेटल फटीग इस केस में काफी रिड्यूस किया जा सकता है, पर पूरी तरीके से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ बल्जिंग फैक्टर of pressurized parts of plane can assist in evaluating the damage tolerance of airframe fuelages. तो बल्जिंग फैक्टर से भी हम पता लगा सकते हैं कोई भी प्रेशराइज्ड पार्ट जो कि प्लेन पे है, उस पर हम डैमेज टॉलरेंसेस निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोफाइल, इलास्टिक रीजन continues till here, and plastic region starts and immediately fracture is reached. Now we'll discuss about fracture. This type of deformation is also irreversible. अगर मटेरियल एक बार फ्रैक्चर हो जाता है तो ये irreversible होता है। A break occurs after the material has reached the end of the elastic and then plastic deformation ranges. At this point, forces accumulate until they are sufficient to cause a fracture. All materials will eventually fracture if sufficient forces are applied. तो जब मटेरियल अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन रीच कर चुका होता है, इसके अलावा वो स्ट्रेस लेना बंद कर देता है, तो वो पॉइंट होता है फ्रैक्चर का। और सारे जितने भी मटेरियल्स हैं सबको उनके फ्रैक्चर पॉइंट तक ले जाया जा सकता है अगर sufficient forces अप्लाई की जाए तो। Now we'll discuss about fracture mechanics. So in this field of mechanics concerned with the study of propagation of cracks in the material, it uses methods of analytical solid mechanics to calculate the driving force on a crack and those of experimental solid mechanics to characterize materials resistance to fracture. तो इसमें हम जिस तरीके से क्रैक्स प्रोपागेट करते हैं, जिस तरीके से वो एक्सपैंड करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें एनालिटिकल मेथड्स का यूज किया जाता है जिसमें कि हम पता लगाते हैं कौन से क्रैक पे किस तरह की ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही है। इन मॉडर्न मटेरियल साइंस, फ्रैक्चर मैकेनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स। तो फ्रैक्चर मैकेनिक्स एक अच्छा टूल है जो कि परफॉर्मेंसेस बढ़ा सकते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट्स की। इट अप्लाइज द फिजिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, in particular the theories of elasticity and plasticity, to the microscopic crystallographic defects found in the real materials in order to predict the macroscopic mechanical behavior of those bodies. तो इस स्टडी में जो कि हम सॉलिड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर मैकेनिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं, इसमें हम जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मटेरियल पे, उसकी हम प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी थ्योरी के अलावा उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो उसका क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कि फटीग कॉज कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
उसके बारे में हम जानते हैं, जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैकेनिकल बिहेवियर कैसा होगा। Fractography is widely used with fracture mechanics to understand the causes of failure and also verify the theoretical failure predictions with real life failures. तो फ्रैक्टोग्राफी इस ब्रांच का नाम है जो कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स से डील करती है, ताकि हम फेलियर के कॉजेस के बारे में जान सकें। इसके अलावा जितने भी थियोरेटिकल फेलियर प्रेडिक्शंस होते हैं उसको हम रियल लाइफ फेलियर से कंपेयर कर सकें। द प्रेडिक्शन ऑफ क्रैक ग्रोथ is at the heart of damage tolerance mechanical design discipline. तो ये यहाँ पे देखिए फ्रैक्चर्स जो है वो ओपन होता जा रहा है। इस केस में फ्रैक्चर बढ़ेगा शेयर मोड से, ये यहाँ पे स्लिप होगा, यहाँ पे स्लिप होगा, और ये आउट ऑफ प्लेन शेयर एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ मूव करते हुए, ये भी एक शेयर का ही फ्रैक्चर है। So these are three fracture modes. So there are three ways of applying a force to enable a crack to propagate. तो क्रैक को प्रोपेगेट कराने के लिए, बढ़ाने के लिए तीन तरीके से फोर्स अप्लाई करी जा सकती है। मोड वन विच इज ओपनिंग मोड, अ टेंसाइल स्ट्रेस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्रैक। तो यहाँ पे ये टेंसाइल स्ट्रेस प्रोवाइड की जा रही है, इसको पुल किया जा रहा है, जो कि जो प्लेन है उस जो क्रैक है उसके प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में। So this is mode one. Then there is mode two, sliding mode, a shear force acting parallel to the plane of the crack and perpendicular to the crack in front. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेकंड मोड है शेयर प्लेन का, जहाँ पे हम स्लाइडिंग मोड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें शेयर स्ट्रेस जो है वो पैरेलल है प्लेन ऑफ क्रैक के और जो क्रैक है उसके परपेंडिकुलर। एंड थर्ड इज मोड थ्री विच इज आउट ऑफ प्लेन शेयर, सो इट इज टीयरिंग मोड. In this case, a shear stress is acting parallel to the plane of the crack and parallel to the crack front. Next is fracture toughness. In material science, fracture toughness is the critical stress intensity factor of a sharp crack where propagation of crack suddenly becomes rapid and unlimited. तो मटेरियल साइंस में फ्रैक्चर टफनेस वो एक क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर है एक शार्प क्रैक का, जहाँ पे जो क्रैक की प्रोपगेशन है, जो क्रैक का बढ़ना है, वो सडनली बहुत तेज बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर इन मोड वन लोडिंग measured under plane section conditions is known as plane strain fracture toughness. Fracture toughness is a quantitative way of expressing a material's resistance to crack propagation, and standard values for a given material are generally available. तो फ्रैक्चर टफनेस एक क्वांटिटेटिव वे है ये बताने का कि मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है ताकि वो क्रैक प्रोपगेशन को लिमिट कर सके। Components thickness affects the constraints condition at the tip of a crack, with thin components having plane stress conditions and thick components having plane strain conditions. Plane strain conditions give the lowest fracture toughness value, which is a material property. When a test fails to meet the thickness and other requirements there are in place to ensure plane strain conditions, the fracture toughness value produced is given the designation. Slow self-sustaining crack propagation, known as stress corrosion cracking, can occur in corrosive environment above the threshold and below. तो कुछ केस में स्लो सेल्फ सस्टेनिंग क्रैक प्रोपगेशन भी होती है, जिसको स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग कहा जाता है। ये कोरोसिव एनवायरनमेंट में हो सकती है। Small increments of crack extensions can also occur during fatigue crack growth, which after repeated loading cycles can gradually grow a crack until final failure occurs by exceeding the fracture toughness. तो इसकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। So this is material type. Metal, in metals we have aluminium, which has a fracture toughness of MPa of megapascal, this value 14 to 28. Then aluminium alloy, value range is from 20 to 35. Then titanium alloy, value range is from 84 to 107. So you can pause in the videos
and check for the values of each metals, ceramics or polymers. For ceramic, we'll consider soda lime glass, so its value range is from 0.7 to 0.8. For concrete, the value range is from 0.2 to 1.4. In case of polystyrene polymer, the value range is from 0.7 to 1.1. And in case of composite material, for example, silica aerogel, the value range is from 0.0008 to 0.0048. Next is transition temperature. At low temperatures, some metals that would be ductile at room temperature becomes brittle. तो अगर टेम्परेचर वैल्यू कम हो जाती है, जो कुछ मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे डक्टाइल होते हैं, पर अगर उनकी टेम्परेचर वैल्यू कम हो जाए तो वो ब्रिटल मटेरियल की तरह एक्ट करने लगते हैं. दिस इज नोन एज ब्रिटल ट्रांजिशन. दिस इज नोन एज डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन. क्योंकि मटेरियल इनिशियली हमारा डक्टाइल था, पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वो ब्रिटल बन गया, इसलिए इसको डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कहा गया. तो दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ऑन इम्पैक्ट on this axis and this is temperature range on this axis. तो ये पोर्शन, अगर ये टेम्परेचर ट्रांजिशन है एंड दिस इज नोन एज टेम्परेचर ट्रांजिशन कर्व. अगर मटेरियल जो रूम टेम्परेचर पे, एग्जांपल एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे मटेरियल डक्टाइल शो बिहेवियर डक्टाइल करेगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे मटेरियल इस तरीके से ब्रिटल बिहेवियर शो करेगा. The ductile to brittle transition temperature is strongly dependent on the composition of the metal. Steel is the most commonly used metal that shows this behavior. तो steel के साथ ऐसा ही होता है, जो कि strongly depend करते हैं temperature पे. For some steels, the transition temperature can be around 0 degrees centigrade, and in winter the temperature in some parts of the world can be below this. As a result, some steel structures are very likely to fail in winters. तो स्टील का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव हो जाता है, और बहुत सारी कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री और उससे नीचे चला जाता है, उस केस में स्टील का ब्रिटल फेलियर होने का, स्टील स्ट्रक्चर का ब्रिटल फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं. दिस इज डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर. So this is how ductile steel behaves. It will simply bend, but this is how a brittle steel behaves. It will break into two parts. So examples of brittle failure. Ductile failure is always a preferred mechanism failure. Many cases have occurred through history where catastrophic failures have caused as a result of brittle fracture. The most infamous of these is the sinking of the Titanic. तो हमेशा से जो इलास्टिक फेलियर, यानी कि जिसमें रेंजेस डक्टिलिटी की हो, उस फ्रैक्चर को ही हमेशा से बेटर माना जाता है. The sinking of Titanic was caused primarily by the brittleness of the steel used to construct the hull of ship. In the icy water of the Atlantic, the steel was below the ductile to brittle transition temperature. तो उस केस में, क्योंकि जब टाइटैनिक इंसिडेंट हुआ था तो अटलांटिक ओशन में बहुत ज्यादा आइसी वाटर था, जिस वजह से स्टील जो थी वो डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन अंडरगो कर चुकी थी, और उस वजह से उसका ब्रिटल फेलियर हो गया. So guys, this was all with today's session. I hope you guys will study, take a great care of yourself. Till then, have a great time and we'll meet in the next lecture. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts. Thank you.